قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ آرمی چیف نے ارکان اسمبلی کے سوالوں کے جواب بھی دیے۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، ارکان اسمبلی کی شرکت، دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر ایوان کو بریفنگ، نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، سپہ سالار نے واضح کر دیا۔ ان کیمرہ سیشن میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس وسائل اور افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں، عوام کے منتخب نمائندے منزل کا تعین کریں۔ پاک فوج ملک کی ترقی اور کامیابی کے سفر میں ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ ارکان اسمبلی نے ڈیسک اور تالیاں بجا کر آرمی چیف کے خیالات کا خیر مقدم کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کیمپین ریاست پاکستان کی پہلے سے منظور شدہ اور جاری اسٹریٹجی پر مبنی ہے۔ اس کیمپین میں سیکیورٹی اداروں کے علاوہ حکومت کے تمام ضروری عناصر شامل ہوں گے۔ یہ نیا آپریشن نہیں بلکہ ہول آف نیشن اپروچ ہے۔ سپہ سالار نے واضح کیا کہ اس وقت پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں رہا۔ شہداء کے غازیوں نے اپنے خون سے اس وطن کی آبیاری کی، ان میں 80,000 سے زائد افراد نے قربانیاں پیش کی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردوں کے لیے ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ دہشت گردوں سے مذاکرات کا خمیازہ ان کی مزید گروہ بندی کی صورت میں سامنے آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ شہداء کی عظیم قربانیوں سے ہی امن بحال ہوا۔ قومی اسمبلی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سوال کیا کہ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی، امن دشمنوں کو واپس کون لایا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی سلامتی سے متعلق ان کیمرہ خصوصی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف نے فوج، رینجرز، پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا، یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے سوال بھی اٹھایا کہ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی، کون لایا، تمام صوبوں میں دہشت گردی کے خاتمے اور فاٹا اصلاحات کے لیے رقوم دی، وہ کہاں گئی، اس کا جواب لینا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ قومی سلامتی اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان اور معاشی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ کوئی نیا آپریشن شروع نہیں کیا جا رہا، اداروں میں جاری جنگ سب کو مل کر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق حکمران اس کے حساب سے بچنے کے لیے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ بات ہوئی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کی جو تمام شکات تھیں ان کو آپریٹو کرنا چاہیے۔ اس وقت نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا 2013-14 میں ہوا تھا، اور دہشت گردی کنٹرول ہوئی تھی۔ 417 ارب روپیہ اپنے NFC کے شیئر سے باقی صوبوں نے کاٹ کے جو ہے KP کو دیا تھا، اور اس کا کوئی نظر نہیں آتا کہ وہ 417 ارب روپیہ کہاں خرچ ہوا۔ اس کے تحت جو ہے CTD بننی تھی، ایفیکٹو بننی تھی، لیبز بننی تھی، ٹریننگ ہونی تھی، اکیڈمیز بننی تھی۔ کنفیوژن ہے جو اس وقت ٹرموائل چل رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی لیے کہ ان سے کوئی حساب نہ لے جو حکمران جو ہے ہمارے گئے ہیں یا ان کے جو سپانسر جو تھے۔ سیاستدان تو آپس میں مذاکرات چلیں کرتے رہیں گے جی، لیکن یہاں پہ تو صرف سیاستدان کے جھگڑوں کا تو سوال نہیں ہے، صرف یہاں تو یہ اداروں کے جھگڑوں کا بھی بیچ میں سوال ہے۔ جب یہ ادارہ جاتی جو ہے جنگ جو ہے، جب تک یہ بند نہیں ہوگی تو اس کے لیے جھگڑے جو ہیں پھر سارے کے سارے اداروں کو بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کا تو ہماری عسکری قیادت کسی طرف اپنا ویٹیج نہیں ڈالتی سر، تاکہ وہ فیصلہ جلدی ہو کسی طرف بھی؟ میں اس چیز پہ کیا کمنٹ کر سکتا۔ قومی اسمبلی نے مختلف بلوں کی منظوری دینے کے ساتھ ساتھ ڈیم فنڈز کی رقم قومی خزانے میں جمع کروانے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو زیر سماعت لانے کی مذمت اور پارلیمان کے اختیارات میں مداخلت سے متعلق 3 قراردادوں کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس پیر کے سپہر 3 بجے تک ملتوی کیا گیا۔ قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس، اختیارات سلب کرنے پر سپریم کورٹ کے خلاف قرارداد منظور، ایوان کا 8 رکنی بینچ پر اظہار تشویش، ڈیم فنڈز قومی خزانہ میں جمع کرانے کا بھی مطالبہ، چیئرمین نیب کے اختیارات بڑھانے سمیت 3 بل بھی منظور کر لیے۔
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन अली मूसा गिलानी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि ये ऐवान पार्लिमान के कानून साजी का मुसल्मा दस्तूर इख्तियार को सलब करने की सुप्रीम कोर्ट की जारहाना कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करता है और दो टोक अंदाज में वाजे करता है कि पार्लिमान के इस इख्तियार में मुदाखलत नहीं की जा सकती। बजट, मालियाती बिल और वसाइल के इजरा से मुतल्लिक मंजूरी का तमाम इख्तियार पार्लियामेंट के पास है और कोई इसको छीन नहीं सकता। ऐवान में मंजूर होने वाली दूसरी करारदाद में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने खिलाफ कानून और ज़ाब्ता 10 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दियामर भाषा और महमद डैम्स फंड कायम किया। अखबार की खबर के मुताबिक जनवरी 2023 में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच को आगाह किया गया था कि डैम फंड्स में 16 अरब 53 करोड़ रुपए मौजूद हैं, जो अगली छमाही में बढ़कर 16 अरब 98 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ऐवान मुतालबा करता है कि डैम फंड्स में जमा होने वाली ये रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए और ये वसाइल 2022 के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए बरूए कार लाए जाएं। ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर कर ली और 8 रुकनी बेंच के गुज़श्ता रोज के हुक्मनामे को मुस्तरद कर दिया। करारदाद में कहा गया है कि हुक्मनामा आइन और कानून से मुतसादिम और पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत है। कौमी असम्बली ने ज़ाब्ता फौजदारी तरमीमी बिल 2023, चेयरमैन नैब इख्तियारात में इजाफे से मुतल्लिक नैब तरमीमी बिल 2023, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 की भी मंजूरी दी। कौमी असम्बली ने आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के इख्तियारात में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि कानून साजी और बिल कमेटी को भिजवाना भी इस पार्लिमान का हक है। मुदाखलत हमारी नहीं, उनकी तरफ से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो कि नज़र सानी की है, रिव्यू की, उसके बारे में ये इख्तियार देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसलों पर नज़र सानी कर सकती है सब्जेक्ट टू एनेक्टमेंट मेड बाय, यानी कि कानून जो कि पार्लिमान बनाए या जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। रिव्यू का जो स्कोप है उसको इनलार्ज किया, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया, उनकी जुरिस्डिक्शन को इनलार्जमेंट दे रहे हैं। और दूसरा, उसमें लिमिटेशन में 30 डेज़ है, उसको 60 डेज़ तजवीज़ कर रहे हैं। एक वन टाइम डिस्पेंसेशन भी है। सर, ये लिटिगेंट्स के लिए और वो लोग जिनके हकूक़ के हवाले से फ़ैसले 184(3) में होते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में या सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में, सर उनको हकूक़ के हसूल के लिए आसानी होगी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड आर्टिकल 4, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 25, उनकी फराहमी में आसानी होगी जी। तो मैं इसे अपोज नहीं करता जी। ये कानून साजी इस हाउस का इख्तियार है और कमेटी को भेजना जो है वो भी हाउस का इख्तियार है। और ये ज़हन में रखिए कि इस इदारे ने आज तक किसी के टेरिटरी में दखल अंदाजी नहीं की, दखल अंदाजी उधर से ही हो रही है। और आप निकल आए इन बातों में से, आपको 22 करोड़ अवाम का ये मैंडेट है कानून साजी का। शेख रशीद के खिलाफ आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकदमात के हवाले से फैसला आने तक समाअत मुलतवी की जाए। वकील की जानिब से यह इस्तदा की गई। अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त की कापियाँ फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त की कापियाँ आने तक समाअत में वक्फा दिया गया है। हसीब मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। हसीब, समाअत का हवाल बताइएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर कि वो इमरान खान की कत्ल की साजिश के अंदर मुलव्विस हैं और उनकी जानिब से ये बयान दिया था, जिसके ऊपर इस्लामाबाद के पारा थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके ऊपर आज केस की समाअत हुई है। और अब्बास शाह जो जज हैं उनकी अदालत में समाअत हुई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने आज फर्द आयद करने के लिए शेख रशीद को तलब कर रखा था, लेकिन जो उनके वकला थे नईम हैदर पंजोथा और सरदार शहबाज, वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हम लोगों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त खारिज करने के लिए डिस्चार्जगी की दरख्वास्तें दायर की गई हैं और अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसला आने तक समाअत को मुलतवी करे और मई के तीसरे हफ्ते तक समाअत को मुलतवी किया जाए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि जो
जो दरख्वास्त आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की हुई है उसकी कॉपी अदालत में फ़राहम करें, अदालत में जमा करवाएं और उस वक्त तक समाअत में वक्फ़ा कर देते हैं। तो इस वक्त समाअत में वक्फ़ा है। शेख रशीद के जो वकला हैं उनकी जानिब से जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है उसकी कॉपियाँ अदालत ने तलब कर रखी हैं और अदालत में पेश की जाएंगी, जिसके बाद समाअत का एक मरतबा फिर से आगाज़ होगा। अगर ओवरऑल दलाइल के हवाले से बात की जाए तो जो नई हैदर पंजोथा थे शेख रशीद के वकील, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ ये भी इख्तियार किया गया कि जो ये दरख्वास्त दायर की गई थी और जिन दफ़ात के तहत दरख्वास्त दायर की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के हवाले से एक सरकारी जो मुलाजिम है वो करवा सकता है, जबकि जो एफआईआर जो दर्ज और वक्फे के बाद दोबारा से समाअत का आगाज़ होगा। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि अदलिया पर जाल फेंकने की कोशिश की गई तो कौम सड़कों पर होगी। पाकिस्तान आइन और कानून की जंग लड़ रहा है। आसिफ अली जरदारी चाहते हैं शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं। नैब कानून में तरमीम अभी इनके गले में अटकी हुई है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जिस दिन कौम को यकीन हो गया कि यहाँ जमहूरियत के लिए अदलिया पर भी कांटे डाले जा रहे हैं, जाल फेंके जा रहे हैं, फिर कौम सड़कों पर फैसला करेगी। आप मुल्क से भाग नहीं सकेंगे। और आसिफ जरदारी चाहता है कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए ताकि बिलो रानी के लिए रास्ता खुले। नैब का कानूनी तरमीम पास नहीं हुई, कल आपने एक और तरमीम कर ली है। अभी नैब का कानून सुप्रीम कोर्ट में आपके गले में अटका हुआ है और आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी जान छूट जाएगी, आपकी जान नहीं छूटेगी। एक नहीं कई केसेस हैं, इनसे हम घबराने वाले नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में नए कायदे ऐवान के लिए इमरान खान ने 3 नामों ख्वाजा फारूक, अजहर सादिक और चौधरी अनवारुल हक की मंजूरी दे दी है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने चौधरी मोहम्मद यासीन का नाम फाइनल कर लिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद इकबाल अपनी रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के 15वें कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए खुसूसी इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने नए कायदे ऐवान के लिए ख्वाजा फारूक, अजहर सादक और चौधरी अनवारुल हक के नामों की मंजूरी दे दी। साबिक वज़ीर दिफा परवेज खट्टक और साबिक स्पीकर असद कैसर नामों की मंजूरी लेकर वज़ीर आज़म हाउस मुजफ्फराबाद पहुँच गए। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी हतमी उम्मीदवार का तयन करेगी। वज़ारत उज़्मा के नामों पर तहरीक इंसाफ मुबैना तौर पर धड़ेबंदी का शिकार नजर आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप की तरफ से चौधरी रशीद का नाम तजवीज़ किया गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद यासीन का दावा है कि कायदे ऐवान के लिए इनके पास मतलूबा अक्सरियत मौजूद है। नए कायदे ऐवान के लिए सादा अक्सरियत के लिए 27 वोट दरकार हैं। अपोजिशन जमातों के पास 20 वोट मौजूद हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी के 12, मुस्लिम लीग नून 7, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का 1 रुकन मौजूद है। तहरीक इंसाफ की 31 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 निशस्त है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर तनवीर इलियास ने पार्टी में धड़ेबंदी की खबरों की तरदीद कर दी है। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर काउंसिल की खाली होने वाली नशिस्त पर पोलिंग शुरू ना हो सकी। खाली नशिस्त के लिए पोलिंग आज असेंबली हॉल में होगी। पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से दिन 2 बजे रखा गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा इकबाल मीर से। इकबाल, बताइएगा अभी तक पोलिंग शुरू क्यों नहीं हो सकी? जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल की खाली होने वाली जो नशिस्त है उस पर पोलिंग का जो अमल था वो सुबह 10 बजे रखा गया था और आखिरी जो टाइम है वो 2 बजे तक है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो असेंबली हाल में मौजूद है। और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रुकन असेंबली हैं मोहतरमा नबीला अयूब, वो इस वक्त जो है असेंबली हाल में मौजूद हैं। वो पोलिंग एजेंट हैं मुत्तहिदा अपोजिशन की जानब से। और PTI की तरफ से अभी तक कोई भी एजेंट तो सामने ना आ सका था। हम जो उम्मीदवार हैं वो खुद यहाँ पर आए और अभी यानी अभी इस वक्त जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ है। और PTI की तरफ से जो है कोई भी रुकन असेंबली यहाँ पर अभी तक पहुँचा नहीं है। ताहम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रुकने हैं वो अभी आना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर जो है वो वोट पोल कर रहे हैं। जी इकबाल मीर, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। माली साल 2025 तक करंट अकाउंट खसारा, महंगाई, अदायगियों का बोझ बढ़ने का खदशा है। माली साल 2024 और 2025 तक अदायगियों का बोझ $29 अरब सालाना पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताएगा किन की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है और मजीद क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? जी, आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान से मुतालिक इकनॉमिक डेवलपमेंट आउटलुक एंड रिस्क रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें निशानदही की गई है कि मुल्क की मईशत को 2025 तक चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जो
जो रिपोर्ट जारी की गई है आलमी बैंक की जानिब से, उसमें बताया गया है कि माली साल 2025 तक करंट अकाउंट खसारा, महंगाई और अदायगियों का बोझ ये मुतवातर बढ़ता रहेगा, क्योंकि आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माली साल 2024 और उससे जो अगला माली साल है 2025, इस तक पाकिस्तान को अदायगियों का बोझ सालाना 29 अरब डॉलर तक अदा करना होगा। इसी तरह एक तरफ तो अदायगियों का बोझ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आलमी बैंक की रिपोर्ट में यह भी खदशे जाहिर किया गया है कि 2025 तक करंट अकाउंट खसारा मजीद बढ़कर GDP का 2.2% तक पहुंच जाएगा। जो आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को IMF समेत चाइनीज कमर्शियल बैंकों का कर्ज और जो बॉन्ड्स की अदायगियां हैं वो करना होगी। इसी के साथ ही ये भी खदशे जाहिर किया गया है रिपोर्ट में कि ग्रोथ रेट और महंगाई ज्यादा रहने के बाइस खते गुर्बत में कमी भी नहीं हो सकेगी और महंगाई जो है वो मुतवातर इसी तरह बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया गया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेल्स टैक्स में हम आहंगी और इनकम टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर हैं जिसका ताकि रेवेन्यू में इजाफा किया जा सके। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमी का सामना है और अगर मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुआशी टीम को इकनॉमिक रिफॉर्म स्ट्रेटेजी पर फोकस करने की जरूरत है। आलमी बैंक ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी लिखा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के बायस भी मुल्क की मईशत को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। ठीक है, अच्छा मुदस्सिर, दूसरी जानिब कुछ IMF की भी अगर बात कर लें तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की जानिब से जो माली इमदाद का हालिया ऐलान हुआ है उस पर IMF का क्या रद्द अमल है? जी, उसके लिए पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का आज अहम बयान आया है और उन्होंने कहा है कि IMF का पाकिस्तान के अहम दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम करते हैं और पाकिस्तानी वफ्द और IMF स्टाफ लेवल की जो हालिया मुलाकातें हुई हैं, जिस तरह वाशिंगटन में सेक्रेटरी खजाना इस वक्त मुलाकातें कर रहे हैं और वजीर खजाना इसहाक डार वर्चुअली शिरकत कर रहे हैं। नेथन पोर्टर ने कहा है कि पाकिस्तानी वफ्द और IMF स्टाफ लेवल की हालिया मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया है और इन पॉलिसियों पर अमल दरामद की कोशिशों में मदद के लिए खातिर खा माली आयानत के हसूल की भी जरूरत पर इत्तफाक किया गया है। नेथन पोर्टर की जानिब से मजीद कहा गया है कि IMF पाकिस्तानी हकाम की इन कोशिशों की हिमायत कर रहा है जो पाकिस्तान इस वक्त मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने के लिए कोशियां है। मिशन चीफ की जानिब से यह भी कहा गया है कि IMF जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतजर है, जैसा कि दोस्त ममालिक की जानिब से कल UAE से 1 अरब डॉलर की जो यकीन दहानी करवाई गई है। इसके साथ ही IMF ठीक है, तो पॉजिटिव रद्द अमल है जो सामने आ रहा है IMF की जानिब से। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान के जिला बोलान में सैलाबी रैले से मुतासरा पुल दोबारा तामीर होने के बाद रेल सर्विस बहाल हो गई है। तकरीबन 7.5 माह बाद कोयटा से जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना हो गई। मजीद बता रहे हैं फरीदुल्लाह खान। जी, कोयटा का मुल्क के दूसरे सूबों के लिए जो ट्रेन का राब्ता है आज दोबारा बहाल हो गया। 25 अगस्त को तूफ़ानी बारिशों की वजह से हीरा के मकाम पे जो पुल गिर गया तो उसको मरम्मत बनाने के बाद दोबारा जो है ट्रेन सर्विस बहाल की गई है और आज जो है पहली मरतबा तकरीबन 7 महीने 20 दिन बाद जो है 900 मुसाफिर जो है मुल्क के दूसरे शहरों के लिए रवाना हुई है। ट्रेन जो है जाफर एक्सप्रेस यहाँ से रवाना हुई और ये कल पेशावर पहुँचेगी। इसके लिए तमाम सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और कम अरसे में जो है NLC ने इस पुल को तामीर किया है। आज इस ट्रेन का जो इफ्तिताह किया है और इनका हुकाम का ये कहना है कि आज के बाद जो दिगर 2 ट्रेनें हैं जिनमें बुगटी एक्सप्रेस है और बोलान एक्सप्रेस है उसको भी रवाना किया और 18 तारीख को यहाँ से जो है जो ईद के लिए स्पेशल ट्रेन है वो भी रवाना होगी। इसलिए भी मुसाफिर खासे खुश हैं। जी, पाक फौज के ताउन से पेशावर के तारीखी मिशन हॉस्पिटल में खस्ता हाली के शिकार कदीम मकामात की तज़ीनो आराइश शुरू कर दी गई है। हॉस्पिटल में तारीखी चप्पल नुमा इमारत मुग़ल शहनशाह शाहजहां के दौर में गवर्नर नवाब सईद खान का बागीचा था। आज खूबसूरत गुंबद के ऊपर वाले हिस्से को मसीही बरादरी अपनी इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हॉस्पिटल के तारीखी पहलू के हवाले से मजीद देखिए सबीन जान की इस रिपोर्ट में। बरतानवी दौरे हुकूमत में घोड़ों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह पर 1904 में मिशन अस्पताल कायम किया गया जो अब हस्ता हाल हो चुका है। अस्पताल में रोजाना के हिसाब से सैकड़ों मरीजों का इलाज होता है। पाक फौज के ताउन से मिशन अस्पताल में हस्ता हाल होने वाली जगहों की तामीर और मुरम्मत करके खूबसूरत बना दिया गया, जहाँ पर मरीजों के तीमारदारों के बैठने के लिए खूबसूरत पार्क भी तामीर किया गया है।
کور کمانڈر صاحب کا، پاک آرمی کا اور اپنے تمام مسلم برادر کا شکریہ جنہوں نے یہ چیپل کو دوبارہ ہمارے کھڑا کیا. نہ صرف انہوں نے اس کی رینوویشن کی ہے، باقی اندر سارا جتنا فرنیچر ہے وہ بھی ہمیں چینج کر کے دیا ہے. ماہرین کے مطابق یہ ہے اسپتال میں موجود خوبصورت چیپل نما عمارت جو مغلیہ دور حکومت میں 17ویں صدی میں اس وقت کے گورنر نواب سعید خان نے اپنے لیے مونومنٹ بنایا تھا، جو برطانوی دور حکومت میں آرمی یونٹ اور سکھوں کے دور میں کوٹ کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا. بعد میں یہ مسیحی سٹاف کے لیے چیپل چرچ کے نام سے استعمال ہونے لگا. 1926 میں یہاں پہ یہ جو مقبرہ ہے اس کو ایک چیپل کا درجہ دے دیا گیا اور یہاں پہ ورشپ کرتے تھے ہمارے جو عیسائی برادری کے لوگ ہیں، تو وہ ابھی تک اٹ ہیز اسٹل کیریڈ آن، ابھی بھی یہ ایز اے ورشپ پلیس یوز ہو رہا ہے. پاک فوج کے تعاون سے تاریخی چیپل چرچ کی خستہ حال عمارت کو 6 مہینوں کے اندر تعمیر و مرمت کر کے خوبصورت اور مضبوط بنا دیا گیا ہے. ملتان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، شہری مشکلات کا شکار ہیں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں. اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گی زینب گردیسی. جی بالکل، ملتان بھر میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے جس نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. 8 سے 9 اور 10 گھنٹے کی تقریباً یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں دکانداروں کو، تاجر حضرات کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہاں پر تقریباً ہمیں جو ایک پر یونٹ جو پڑ رہا ہے وہ 45 سے 50 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہے، جس میں کہ لائٹ ابھی آتی نہیں ہے اور بل ہمارے تقریباً 30 ہزار 35 ہزار کے بل آ رہے ہیں. بہت مشکلات ہو گئی ہے عوام کو. جی بجلی غائب رہتی ہے، عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. کو حکام کا یہی کہنا ہے کہ 4200 میگا واٹ کی طلب ہے جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع میں، جبکہ 500 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کے کاروبار زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں. انہوں نے حکومت سے اس سلسلے میں مناسب اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. جی سرگودا سے خبر شامل کریں گے. علی امین گنڈاپور کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. ATC عدالت نے علی امین گنڈاپور کو بھکر پولیس کے حوالے کر دیا. بھکر پولیس نے علی امین گنڈاپور کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اکرم عامر سے. جی اکرم عامر بتائیے گا. جی بھکر میں درج مقدمے میں علی امین گنڈاپور کو آج سرگودا کی دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا تو پولیس نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی سزا کی تھی، لیکن سرگودا کے وکلاء نے سزا دلائل دی ہے، جس پر PTI کے وکلاء کی دلائل دینے پر فاضل جج نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا علی امین گنڈاپور کا اور 3 روزہ جی اکرم بہت شکریہ آپ کا.